Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. This is the video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from the Hindu as well as from the Indian Express. So let's get started. These are the list of the topic that I'll be discussing with you. So the first topic is McKinsey Global Report on India's growth. The second topic is US action against the China over South China Sea dispute. The third topic is advantages of National Recruitment Agency and the CET, that is a common eligibility test. And the last topic is delimitation in the northeastern state, which has been recently in the news. So these all are the topic from 27th of August. And apart from this, we'll have some MCQs question and the explanation of yesterday question. तो कल के जो सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शंस और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा और कुछ MCQs के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे. So stay tuned till end of this video. An announcement from Apti Plus that we are organizing an All India Open mock test series for 2020. Basically, the upcoming examination. Before you appear for the upcoming examination, it is very essential that you know where you are, what is the performance, what is the level of your preparation. So for that, you need to appear for an All India test. So this would be conducted free of cost, right? So you can check the details of All India mock test in the description of this video. And for the top 50 performer, we're having some good offers, like we'll be offering free mains answer writing and the other evaluation of the copy at free. So this would be something that would be benefiting 51st student. So do check the description of this video and you can enroll from there itself, right? Now the first topic is McKinsey Global Report on the India's growth. This is there from the Hindu. ये आपको हिंदू के नेशनल पेज में न्यूज़ मिल जाएगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैकेंस्की जैसे फर्म्स के लिए, जिसकी जो रिपोर्ट्स होती है काफ़ी ऑथेंटिकेट्स होती है द थिंग्स विच इज़ अगेन बीइंग वैलिडेटेड. गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडर करती है. तो इस रिपोर्ट में बताई गई है कि इस तरह से जो जीडीपी है कि अगर और पर ग्रोथ नहीं की गई तो इट वुड बी कमिंग टू स्टैग्नेशन. सो दिस इज़ एन एनालिटिकल टाइप ऑफ बेसिकली नोट्स न्यूज़ इज़ देयर. ये आपके जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. And at the same time, some points may be here and there important for your prelims examination. So according to the report by the McKinsey Global Institute, जिसको MGIB कहते हैं शॉर्ट में, they have undertaken a slew of reform. उनके मुताबिक आने वाले 12 से 18 महीने में बहुत सारी चीज़ों को टारगेट करने की ज़रूरत है so that we could increase the productivity. So productivity would be the first thing and the second would be creating jobs. जिस तरह से unemployment है इंडिया में, so it is very essential. और after lockdown, the number of the unemployment people has gradually increased, drastically increased, right? And India will have a triple job creation which would be required. 12 million लोग ऐसे होंगे जो कि गेनफुल हैं अभी नॉन फार्म जॉब्स में पर ईयर and 4 million people achieved from 2013 to 2018. So this is the number which you can see. और इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है. सो फर्स्ट कि इंडिया की जीडीपी की अगर बात करें तो वी नीड टू ग्रो एनुअली बाय 8 to 8.5%. ऑल्दो मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल के बारे में बताऊं, लॉकडाउन से पहले जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था 7% के आसपास जीडीपी की ग्रोथ, राइट? सो 7% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ वाज प्रोजेक्टेड. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब कोविड से पहले, मैं फरवरी के आपको बारे में बात बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वार्टर से पहले, वहाँ पे वी हैव अचीव्ड ओनली 6.4%. और बात की गई थी जब $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को अगर बनना है तो कहीं ना कहीं हमें 9 से 12% के आसपास की टारगेट अचीव करनी पड़ेगी ऑफ द जीडीपी. बट दिस वाज ऑल्दो नॉट सक्सेसफुल. कोविड-19 से पहले की बातें हैं और अब उस टाइम पे वेयर एवरीथिंग हैज़ बीन शैटर्ड और बहुत सारे जगह पे जो द सेक्टर वाइज ग्रोथ हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, उस टाइम पे 8.5% का प्रोजेक्शन आई पर्सनली फील एज अ लार्ज नंबर. लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट कैन चेज दिस नंबर. And this number is essential to create an opportunity post COVID-19 era, right? तो ये जो मैंने आपको एक क्रोनोलॉजी समझाई है उसको आप रिलेट कर सकते हो. नाउ इंडिया इज़ एट रिस्क ऑफ द डिके. बेसिकली अगर बात करें स्टैग्नेशन की, जो इनकम है वो स्टैग्नेशन हो गई है. क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ अगेन इन द अर्जेंट स्टेप टू टेक अ स्पर ग्रोथ. जिस तरह से कोविड-19 के बाद लोगों की सैलरीज की अगर बात करें या फिर और भी जो इमोल्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ों में कमी की गई है. एंड द ओवरऑल जो लोगों की जो अर्निंग है, जो डेली वेज अर्नर है, उनके पैसों में भी काफ़ी गिरावट हुई है. एंड मेनी पीपल आर इवन नॉट गेटिंग जॉब, राइट? Now, GDP, which is set to contract over 5% of the financial year में
2021 की अगर बात करूँ तो दिस इज समथिंग इट विल बी क्लोज टू 5% विथ सम एस्टिमेट्स जो हैं इसको लेकर के। नाउ ओवर द रिफॉर्म की अगर बात करें, जो मैकेंस्की ग्लोबल इंडेक्स, जो इंडिया की जो रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहली बात है जिस पे जोर देने की ज़रूरत है सरकार को, उसको सेक्टर्स को हाईलाइट की गई है मैकेंस्की की तरफ से। तो कुछ 2-3 सेक्टर्स के बारे में जोर दी गई है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी होगी रियल स्टेट, द थर्ड वुड बी एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड रिटेल स्टोर। तो रिटेल स्टोर में आप अभी जो ई कॉमर्स है, जैसे अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन ने अपने रिटेल आउटलेट बनाने की भी बात की है, या फिर बड़े फर्म्स की अगर बात करूँ, जैसे मैं फ्यूचर ग्रुप की अगर बात करूँ, जो बिग बाज़ार है, दे आर ऑलमोस्ट ऑन दिस, रिलायंस उनको परचेज कर रही है फ्यूचर ग्रुप को। तो रिलायंस हो गए, रिलायंस के ये जियो के नाम से इन्होंने जियो मार्ट भी स्टार्ट किया है। सो दिस वुड बी समथिंग दैट हैज़ टू ग्रो, जहाँ पे नंबर्स ऑफ पीपल वुड इंगेज, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, एमएसएमई हो, या और भी कोई ऐसे सेक्टर्स हो जहाँ लोगों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ वन वे आउट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया जा सकता है ना। उसके बाद और जो एमजीआई की रिपोर्ट है, दैट कॉल फॉर क्रिएशन ऑफ flexible labor market. तो labor market is very essential. As I've told you, 90% of the people in India work in the unorganized sector. ये मैंने आपको पहले भी एडिटोरियल में डिस्कस किया है। तो 90% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो लेबर मार्केट फोर्स, जो लेबर मार्केट है, उसको बहुत ही फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। Now, it also need to enable an efficient power distribution to reduce the tariff of the consumer by 20%, privatizing 30 top strained enterprises. अगर मैं सबसे कम सब्सिडी, अगर जिस स्टेट में सब्सिडी ज़्यादा दी जाती है और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेट्रोपॉलिटन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो दिल्ली इज़ अ सिटी जहाँ पे आपको फर्स्ट 20 यूनिट के जो कंजम्पशन अगर आप करते हो तो उसमें 200 यूनिट तक आपको फ्री मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो कंजम्पशन पैटर्न है, सो लेस देन 200 इट वुड बी फ्री। उसके बाद अगर आप यूज़ करते हो, यू हैव टू ग्रेजुअली पे द अमाउंट अकॉर्डिंगली, राइट। तो यहाँ पे बात की गई है जो पावर टैरिफ्स हैं उसको कम कर देने की ज़रूरत है, और अगर हो सके तो अगर हम PPP मॉडल पे काम कर सके तीनों जगह पे, अगर और स्टेट्स पे, तो उसके थ्रू भी लोगों के जो टैरिफ्स हैं, जहाँ पे भी राहत मिल सकती है सिटीजन्स को, वो दिए जा सकते हैं। सो दिस वुड बी मोर टूवर्ड्स द गुड गवर्नेंस, राइट। नाउ अर्बनाइजेशन ट्रेंड की बात की गई है, जैसे रिसेंट में कोविड से पहले भी की अगर मैं बात करूं, तो गिवन द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन ट्रेंड, देयर विल बी 90 मिलियन एडिशनल वर्कफोर्स इन द सर्च ऑफ नॉन फार्म जॉब्स बाय 2030। फार्मर्स is also not a much profitable job nowadays. लोग किसानी या फिर जो उनके जो पूर्वज के जो बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, लोग उनको सेल आउट करके किसी दूसरे तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्री लाइक इंडिया, वेयर द इंटायर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द फूड सिक्योरिटी थ्रू एग्रीकल्चर, राइट। तो एग्रीकल्चर प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन कंट्री लाइक इंडिया। बाकी जो एंटिसिपेशन है मैकेंस्की के द्वारा, उनके मुताबिक 90 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कि नॉन फार्म जॉब्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो दिस वुड बी मोस्टली द यूथ, अपकमिंग यूथ्स, उनको एग्रीकल्चर पे आगे परस्यू नहीं करना है। ना कुछ सजेशंस दिए गए हैं फिनेंशियल सेक्टर्स को लेकर के, जो फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है वहाँ पे। तो फ्रॉम फिनेंशियल सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, द फोकस होना चाहिए वो रिफॉर्म की तरफ होना चाहिए, किस तरह से जो हमारे फिनेंशियल रिसोर्सेज है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके, एंड इट कैन डिलीवर 2.5 ट्रिलियन इन द इन्वेस्टमेंट, राइट। उसके बाद बूस्टिंग द एंटरप्रेन्योरियलशिप, ये भी काफ़ी अहम है। किसी भी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, एंटरप्रेन्योरियलशिप कैन प्ले अ वेरी 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 टारगेट विच कैन बी अचीव्ड बाय द कंट्री। एक इस तरह का रोल अदा कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कंट्री की इकोनॉमी बूस्ट करने में बहुत हद तक मदद कर सकती है। आप अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लो, आप एलन मस्क का एग्जांपल ले लो यूएस के, या बहुत फ्लिपकार्ट का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। तो दीज एंटरप्रेन्योर हैव अल्टीमेटली लैंडेड इन द नेशन बिल्डिंग में उन्होंने मदद की है। सो बाय लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल एंड द एंटरप्राइजेस, फिर क्रिएटिंग द बैड बैंक, जिसके वजह से बहुत सारी जो डूड एसेट्स हैं उसको लेकर के भी प्रॉब्लम हुई है। तो बैड बैंक बना करके जो एनपीए का इशूज़ है उसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। दिस इज समथिंग विच द मैकेंस्की हैज़ ऑलरेडी हाईलाइटेड। नाउ बल्क ऑफ 60 रिफॉर्म हैज़ टू बी अंडरटेकन बाय द स्टेट्स एंड रिमेनिंग 40 बाय द सेंटर। तो यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, जो 60% रिफॉर्म है दैट हैज़ टू कम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड द रेस्ट 40% हैज़ टू कम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट।
एंड MGI जो हमारी मैकेंस्की है उनके मुताबिक दे हैव पॉइंटेड कि जो मैन्युफैक्चरिंग है दिस वुड बी लाइक कंस्ट्रक्शन सेक्टर शुड ऑफर द मोर अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि इससे पहले भी आप कोविड-19 से पहले भी देखोगे तो जो लेबरर थे, जो मास लेबरर थे, वो कंस्ट्रक्शन साइट में उनका काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन की अगर स्पेसिफिक में बात करूँ, राइट। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है फॉर द हायर एम्प्लॉयमेंट दीज टू सेक्टर इज द ओनली वे आउट, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, राइट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स परस्पेक्टिव, पीटी के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, साथ के साथ ये आपके जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूएस ने एक्शन लिया है अगेंस्ट चाइना ओवर द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। यूनाइटेड स्टेट के गवर्नमेंट ने क्या किया है, 24 चाइनीज कंपनीज को कंप्लीटली ब्लैकलिस्ट कर दिया है एंड कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनको एलिज किया गया है कि अगर बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट चाइनीज पीपल, कंपनीज एंड इंडिविजुअल आर डूइंग, दे आर बिल्डिंग एंड मिलिटराइजिंग द आर्टिफिशियल आइसलैंड ऑफ द साउथ चाइना सी, जो स्पार्टली आइसलैंड है वहाँ पे, उसको लेकर के बात है। मैं आगे आपको मैप भी दिखाऊंगा सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। तो यूएस ने अक्यूज किया है चाइना को कि फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स व्हाट दे आर ट्राइंग, व्हाट चाइना इज ट्राइंग, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ मैरिटाइम एम्पायर इन द साउथ चाइना सी। एक इमेज से आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। सो दिस इज द इमेज हाउ चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट अ एम्पायर ऑन द साउथ चाइना सी, राइट। सो दिस इज ऑन समवेयर द पार्ट ऑफ दिस पार्टली आइसलैंड, राइट। तो आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे काम किया जा रहा है, कितने हेविली दे आर बिल्डिंग द थिंग्स, राइट। Now the decision was taken by the UN administration, जो अभी ट्रम्प की जो सरकार है उन्होंने डिसीजन लिया कि जो भी ऐसे पार्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है साउथ चाइना सी के में लेकर के, वो एक बहुत ही डिस्प्यूटेड है और ये डिसीजन उसी को ध्यान में रखते हुए ली गई है, बाकायदे ऑफिशियली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेट डिपार्टमेंट, जो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट है, जिस तरह से हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वैसे यूएस में स्टेट डिपार्टमेंट होती है। सो इट वुड इम्पोज वीज़ा रिस्ट्रिक्शन ऑन चाइनीज़ इंडिविजुअल। अगर मैं टेक्निकल जाइंट्स की बात करूँ तो हुआवे है, हुआवे को भी कम्प्लीटली बैन कर दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स में। जिस तरह से यूएस में एप्पल है, जिस तरह से यूएस में एप्पल है उस तरह से चाइना में हुआवे है, राइट। हुआवे इज़ द ब्रांड लाइक एप्पल ऑफ द चाइना, उसको भी कम्प्लीटली चाइना में, इंडिया बेसिक यूएस में बैन कर दिया गया। सो आई हैव शोन दिस इमेज कि हाउ लॉन्ग एंड हाउ ह्यूज कंस्ट्रक्शन चाइना इज मेकिंग, एक वो पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। एक बार अगर ये चीज़ें यहाँ एस्टैब्लिश हो गई तो दे वुड बी ग्रेजुअली डेवलपिंग द अदर पार्ट्स एज वेल। नाउ व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द यूएस एक्शंस, जो यूएस ने इस तरह के एक्शंस लिए। सबसे पहले बात बताई गई है कि जो मिलिटरलाइजेशन की जा रही है, जो मिलिट्री सेटअप की जा रही है, जो मॉडर्नाइजेशन की जा रही है मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इंटीमेट करती है जो एशियन नेबर कंट्रीज़ हैं उनको भी, और बाद में वो उसको एक्सप्लॉइट करिएगा काफ़ी ज़्यादा। जब एक कंट्री उस रीजन पे डोमिनेट कर ले रही है, वहाँ पे और भी कोई उनको बेसिकली मात देने के लिए नहीं है या कोई उनके कंपिटिटर नहीं है, सो द चाइना वुड बी द ओनली कंट्री विच कैन हैव कंट्रोल ओवर द एक्सटेंसिव ऑयल एंड गैस रिजर्व, राइट। तो ये सबसे बड़ी कोशिश है चाइना की कि जो ऑयल और गैस रिजर्व है उसको पूरे अपने कब्जे में लिया जा सके। सो द एंटायर रैशनल बिहाइंड चाइना इज दिस, सो यू हैव टू थिंक हाउ चाइना इज वर्किंग, राइट। Now the second is US has conducted multiple freedom navigation operation, sending warship through the area to assert the freedom of accession of international waterways। क्योंकि बात ये भी की गई चाइना की तरफ से और यूएस ने इसको क्लेम भी किया है कि चाइना कई बार बेसिकली जो इंटरनेशनल वाटरवेज या जो इंटरनेशनल वाटरवेज लॉज है उसको वायलेट किया है चाइना ने, राइट। एंड चाइना क्लेम्स कि 90% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज देयर इन द साउथ चाइना सी। ये चाइना को पता है कि 90% ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी वो साउथ चाइना में सी में है, बट उसके अलावे जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनको भी आप नकार नहीं सकते, दे आर द पिट्स एंड पार्ट ऑफ दैट रीजन। तो ब्रुनाई है, मलेशिया है, फिलीपींस है, ताइवान है, वियतनाम है, दे हैव ऑल्सो क्लेम द पार्ट टू बी द थ्रू विच दे कैन 3 ट्रिलियन पासेज ईच ईयर। वो एक ऐसी रीजन है साउथ चाइना सी की, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, दिस इज द रीजन जहां से ऑलमोस्ट पूरे साल $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की ट्रेड होती है, राइट। सो दिस इज द स्पार्टली आइलैंड हियर, दिस इज द साउथ चाइना सी, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। So this is the island here, this is the complete South China Sea,
दिस इज़ द 9 डैश लाइन, आपको पता होगा, आपने पढ़ा है 9 डैश लाइन। इसके पास के जो कंट्रीज़ हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड वियतनाम और ताइवान, ये सारे कंट्रीज़ के नाम आपको पूरे ध्यान में होने चाहिए। यू शुड लर्न दिस कंट्री बिकॉज एनी टाइम दे कैन आस्क यू। यूपीएससी कई बार आपको ऊपर से साउथ से नॉर्थ जाने को बोल सकती है, बेसिकली ईस्ट वेस्ट से ईस्ट के रीजन में पूछ सकती है कौन कौन सी कंट्री है साउथ चाइना सी के, 9 डैश लाइन के पास में कौन कौन सी कंट्री है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे से याद कर लें। Now the other topic, that is the advantages of the National Recruitment Agency and CET। तो यहाँ पे बात की गई है जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है उसके बारे में। इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस में जितेंद्र सिंह ने लिखा, हु इज़ द MOS मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो इस वीडियो पे, इस बेसिकली नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप इस वीडियो में आई बटन क्लिक करके उसको देख सकते हैं, ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। सो या वहाँ पे आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाएगी और मैं आपको यहाँ पे जो न्यूज़ में आई हुई है वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ। तो एक मल्टी लेवल एजेंसी बनाई गई है जो कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। तो जो NR है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, ये एजेंसी है और जो एग्ज़ाम ये कंडक्ट करेगी उसका नाम होगा CET, राइट। एक अगर NRA की बात करें तो यूनिक मॉडल बनाई गई है जो एक पैराडिम शिफ्ट की तरफ देखा जा रहा है गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर के। एंड NRA विल प्रूव बी द बून फॉर द करोड़ ऑफ यंगस्टर्स। जो मल्टीपल यंगस्टर हैं, करोड़ ऑफ यंगस्टर दे आर अनएम्प्लॉयड, उनके लिए काफ़ी बून साबित हो सकती है। एंड इट विल एलिमिनेट मल्टी टेस्ट टू सेव द टाइम एंड द रिसोर्सेज। होता है क्या था इससे पहले, अगर आप RRB का एग्जाम दे रहे हो या आपने SSC का एग्जाम दे, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर IBPS, यू हैव टू अप्लाई मल्टीपल टाइम्स एंड यू हैव टू अपियर फॉर द डिफरेंट एग्जामिनेशन डिफरेंट डेज, और कई बार डेज क्लास भी होती थी। सो इस वजह से NRC के जो स्टैब्लिशमेंट होगी उसके वजह से बहुत सारे लोगों को अब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। दे डोंट हैव टू अपेयर फॉर द मल्टीपल एग्जामिनेशन और काफ़ी रिसोर्स सेव होगा। उनको मल्टीपल एग्जामिनेशन के लिए फ़ी नहीं देने पड़ेंगे, 10 जगह पे उनको सेंटर पे नहीं जाना होगा। सो अल्टीमेटली इट वाज द स्टूडेंट फ्रेंडली डिसीजन, राइट। एंड इफ इट जो ट्रांसपेरेंसी है उसको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। एक हॉलमार्क होगी गवर्नेंस मॉडल को लेकर के। तो इस वीडियो के जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं उसको आप ज़रूर देखें, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझाई हुई हैं। नाउ NRA की बात करें, सो जो रिप्रेजेंटेशन होगी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से होगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल सिलेक्शन IBPS। इन सारे जगह के लोग जो हमारे जो NRA बनेगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो बनेगी, उस पर यहाँ पे इन सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट। नाउ एवरेज अगर बात करें 2.5 to 3 करोड़ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि हर साल 1.2 लाख वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं और अगले साल से NRA को इम्प्लीमेंट किया जाना है। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है दैट वुड बी कमेंसिंग फ्रॉम 2021, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। एंड इट इज़ ट्यून विद द गवर्नमेंट मंत्रा की ईज ऑफ लिविंग फॉर द यंग जॉब एस्पिरेंट्स। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ईजी किया जाए, आसान किया जाए और टाइम जो है अल्टीमेटली जो पूरा साइकिल है जॉब साइकिल उसको कम किया जा सके। और एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन करने की बात की गई है। गवर्नमेंट का स्पेशल ध्यान है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए ये काम की जाएगी, राइट। नाउ NRA शैल कंडक्ट अ सेपरेट सेट जो है CET का एग्जाम जो मैंने आपको बताया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो 3 लेवल पे होगा, 3 क्लास पे होगा। बेसिकली फर्स्ट वुड बी द ग्रेजुएट लेवल, हायर सेकेंडरी एंड क्लास 10th लेवल। तो इन तीनों लेवल पे एग्जामिनेशन ली जाएगी, जिसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंगली वो अपीयर कर पाएंगे। एंड CET विल बी अवेलेबल सून फॉर द सेवरल लैंग्वेजेस। पहले क्या होता था, सिर्फ इंग्लिश, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है इंग्लिश और हिंदी, ये 2 लैंग्वेज होते थे जहाँ पे पूरी एग्जाम्स होती थी। नाउ दिस वुड बी कंडक्टेड इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट इज मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नाउ द अदर टॉपिक इज द डीलिमिटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस से है, गवर्नमेंट ने अमेंड किया है डीलिमिटेशन कमीशन को ताकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा सके डीलिमिटेशन को, राइट। Now, Union government has moved a proposal to amend the RPA, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। जो RPA 1950
राइट, दिस इज 1950 एंड RPA 1951। ये दोनों के बारे में आप डिफरेंस ज़रूर देख लें। 1951 के बारे में कई बार यूपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो डीलिमिटेशन कमीशन स्टैब्लिश की गई है फॉर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम एंड नागालैंड। अब निमोनिक्स बना के याद कर ले, AMAN, right? Now the law ministry has notified the delimitation commission for 4th northeastern state and जम्मू एंड कश्मीर। इनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने ऑलरेडी मार्च में ये नोटिफिकेशन दिया था, जहाँ पे ये 4 स्टेट्स और जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन बनाने की बात की गई थी। अब अमेंड क्या क्या किए गए हैं लॉज में अगर बताएं तो डिलिमिटेशन कमीशन 2002 जो था उसको अमेंड किया गया था जनवरी 2008 में, दैट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू पोस्टपोन द एक्सरसाइज ऑफ 3 स्टेट। इस स्टेट में डिलिमिटेशन करनी है या नहीं करनी है, ये कंप्लीटली प्रेसिडेंट का प्रेरोगेटिव होगा। सब्सिक्वेंटली फिर क्या हुई, पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि क्रिएशन की जाएगी डिलिमिटेशन कमीशन की फॉर द लिमिटेड पर्पस फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द 4th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए। ये पार्लियामेंट ने ऐसा डिसाइड किया था। फिर सेक्शन 8A जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की, वो इंट्रोड्यूस की गई इस पर्पस के लिए। तो पार्लियामेंट ने गाइड किया कि जो प्रेसिडेंट्स है इलेक्शन कमीशन का, उनके अथॉरिटी में सारी चीज़ें की जाएंगी। जो रिड्रॉ बाउंड्रीज है वो सारी चीज़ें की जाएंगी, इंक्लूडिंग दिल्ली जहाँ पे 70 सीट्स हैं 1992, एंड उत्तराखंड में भी 70 सीट थी 2000 तक, राइट। अब आगे बढ़े और अगर बात करें कि जो नोटिफाइड डिलिमिटेशन कमीशन है उनमें क्या क्या चीज़ें थी। तो जो लॉ कमीशन है दे हैव नोटिफाइड की जो डिलिमिटेशन कमीशन होगी वो 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर के लिए होगी, जो मैंने आपको पहले बताया, जो मार्च में ऑलरेडी इस चीज़ को नोटिफाई कर दिया गया। फिर फॉर्मर जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बेसिकली रंजना प्रकाश, मैं आपको इसका नाम बता रहा हूँ, कहीं पर एग्जाम में सीधा पूछ ले जाता है। रंजन प्रसाद देसाई जो थे, ही वॉज अ चेयरमैन, और जो इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्रा, ही वॉज द EC रिप्रेजेंटेशन ऑन द पैनल, जो कि नोटिफाई की गई थी, राइट। नाउ कंसर्न कुछ रेज किए गए हैं जो 18 सेक्शन 8A को लेकर के। तो जो नोटिफिकेशन है उनका कहना है, जो नोटिफिकेशन आई है वो वायलेट करती है सेक्शन 8A ऑफ द RPA 1950, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, उसके सेक्शन 8A को वायलेट किया गया है। किस तरह से, तो जो RPA एक्ट 1950 वो इंट्रोड्यूस हुई थी पार्लियामेंट में इन 2008, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए और अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर में उसको रखा गया था। एंड हेंस द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम एंड नागालैंड बाय द न्यू डिलिमिटेशन कमीशन वुड बी डिक्लेयर वॉइड बाय द ऑल कोर्ट्स, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली रिजल्ट जो है वेस्टेज ऑफ ह्यूज प्रेशियस पब्लिक फंड्स होंगी। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं सेक्शन 8A RPA 1950 को वॉयलेट करती है कि ऐसी इस्टेब्लिशमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो एक्सचेकर है, गवर्नमेंट एक्सचेकर, उसको लॉस होगा। एंड द पोल पैनल हैज़ फॉरवर्डेड दिस मैसेज टू द लॉ कमीशन फॉर द कंसिडरेशन, राइट। लॉ पैनल ने अपने हिसाब से इनको रिकमेंड भी किया है। नो अगर सोर्सेज की माने तो बेसिकली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और लॉ मिनिस्टर ने उन्होंने एग्री किया कि जो RPA एक्ट है 1950 उसको परमिट किया जाना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और नागालैंड में। और ये जो अमेंडमेंट होगी इट प्रोवाइड करेगी एक लीगल बेसिस फॉर द March 6 ऑर्डर। जो March 6 को जो ऑर्डर निकाली गई थी उस चीज़ को ये प्रूव करेगी, और इसके इसी पे कदम लिया गया सरकार की तरफ से। तो लॉ मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि they would reach out to this month comments and later it would be learned to have okayed by the proposal। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इस चीज़ को बहुत ही जल्दी पारित करेगी। आने वाले समय में 2022 में इलेक्शंस भी हैं लोकसभा के, उससे पहले डिलिमिटेशन एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा, और मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वाई देयर इज़ एन एक्ट ऑफ डिलिमिटेशन, तो जो डिलिमिटेशन है दैट इज़ अ एक्ट ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज फॉर लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूट्स टू रिप्रेजेंट change in the population and is done on the basis of the preceding census। तो अभी जो 2011 की सेंसस है उनके मुताबिक सारी डिलिमिटेशन की जाएगी। Now when was the last delimitation exercise were done, ये टॉपिक आपके लिए जानना ज़रूरी है, कब लास्ट हुई थी। तो स्टार्टेड इन 2002 एंडेड इन 2008, और जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, नागालैंड को बाहर रखा गया था, क्योंकि उस समय 2001 की सेंसस यूज की गई थी। अब 2011 के सेंसस के साथ ये चारों स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड, इनमें किया जाएगा डिलिमिटेशन।
Now moving to the answers of today's question, जो आज के सवाल हैं. So the first question is from basically जो पहला सवाल था उसके जो correct option है that is C. Currency swap reduce the foreign exchange risk. Similarly, it reduce the interest rate of risking. और जो currency swap agreement है, it help to improve the confidence of the market and enable the agreed amount which is available to India. But it is also bring down the cost of capital for the entities while accessing the capital market. तो मैं एक्सप्लेनेशन पूरा रीड कर देता हूँ आपके लिए सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेट अंडरस्टैंड. और ये इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन हियर, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, that the amendment of the constitution can be initiated only by the introduction of bill for the purpose in either houses of the parliament and nor in the state legislature. तो ये बहुत ध्यान से समझ लें. And the second statement is incorrect, that the bill introduced either by the minister or by the private member does not require prior permission of the president, right? So this is again from the Indian polity, Lakshmikant. Now let's move to today's MCQs question. So the first question is from the Indian culture. Temple painting were patronized by the Pallava king and the Pandyas ruler opposed this painting art. So you have to choose the correct option A, B, C and D. So many of you are participating. Really, thank you for participating. Do participate. Write your answer in the comment section. Comment section में जा करके आंसर जरूर बताएं. Now the history. With reference to the Charter Act of 1600, consider the following statement. It granted East India Company exclusive privilege of trading through the Cape of Good Hope, and the governor of the company were the sole administrator provided by the charter. तो अगर आपने NCERT पढ़ा है मॉडर्न हिस्ट्री की तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई है. आपको बस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं A, B, C या फिर D और हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, राइट. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एप्टी+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज ऑन यूट्यूब एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट अ लाइक बटन ऑन दिस वीडियो. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.